Hello friends, all of you are most welcome in the annual day program of Sundaram Central School and Junior College. Friends, many a time in the annual day program we used to invite many dignitaries, and due to shortage of time we cannot utilize their potential completely because of lack of time. So there is one option that we can conduct one live debate or panel discussion by using all these dignitaries and by asking different questions so that all will be benefited by their expertise, views and ideas. Here is one example. Good evening, friends. Personally, I believe that if India want to become developed country, from so many years we are having the tag of developing country. If we want to become developed country, we have to follow the education system of developed country. So for that, there are some loopholes in the education system of India. So we are having panel of different fields. So we'll be having some discussion because I feel that parent, teachers and expert, only they can solve the educational problem of the Indian society. So Professor, first question I want to ask from the Professor S.C. Panigrahi sir. Sir, do you think modern public schools are providing educational services with full accountability and responsibility, sir? Yeah, I strongly say yes, but with a caution. Not every public school is like this Sundaram Education Society. There is a difference. The activities that this particular society is doing, the kinds of activities that are being carried out in the school, I hope that it is definitely contributing for the growth of the society. Now, as far as accountability is concerned, I was talking to the uh, president and the secretary and the trustees. They have vision for not only people of the Palghar. So Sundaram Education Society has a vision for future. Now, it adds a lot of responsibility. On the one hand, they are accountable to their own duties, the vision that they have envisaged for the people of Palbhagar. But at the same time, the different types of responsibility that are there, please remember, it is not only the trustees who can take to that height, the students, teachers, parents, institution, and finally the management. Together, they will take to new heights. If any of the four, five names that I uttered here, if anyone fails to do their job, for instance, as a teacher, if I fail in my duty, as a student, if I fail my duty, and so on and so forth, the vision that the society has, particularly the school has, will not be able to reach. But I don't want to be pessimistic this evening, looking into the achievements of the people and the dedication of the society members. I'm quite hopeful that yes, we have a great future. Thank you. Thank you, Professor S.C. Panigrahi, sir. Now coming with
Next question for Professor Asutosh Biswal, sir. Sir, as you said that only 3 to 4% used to think. So, sir, can you guide us? How can we promote thinking among school children from pre-primary to senior secondary? Yes. Sir, please be seated. Actually, we can do that. So what to do? Well, there is a good technology now. That is known as flip classroom. Simple, you flip your situations. In the school, what you are doing, don't do that. In the school, what you are not doing, try to do that. Only simple, flip the situation because our school system was designed for a different purpose. The English people, they have designed our school system, what we are running now, just to prepare the clerks. And till today, we are continuing with that system. We have some 10 points. If you can, okay, some points are very difficult to consider, but you can consider. One is don't discourage the child to think. Generally, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को सुनते नहीं है बच्चे कुछ बोलते हैं चुप कर जैसे बोलता है चुप चुप ये मुंह से जो हाथ रखते हैं उसको हटा दो whatever the students are telling let them to tell second thing is we have the teachers particularly for teachers we have a habit to talk only develop a habit of listening to the students बच्चे को सुनो क्या बोल रहा है हम सुनने से पहले ही बोलते बैठ जा वो आदत को छोड़ दो so you can develop that thing next thing is freedom we don't allow the freedom जैसे आप एक क्वेश्चन पूछा बच्चे सोचते हैं मैं आंसर करूं या नहीं करूं तो गलत हो जाएगा अरे गलत होने तो दो आंसर तो करने दो सो गिव ए फ्रीडम आपको सवाल आएगा डिसिप्लिन अरे डिसिप्लिन कितना इंपोज करोगे discipline you cannot impose the discipline you can have the self discipline create the child in such a way that they can develop the self discipline और एक बहुत बड़ा थिंग है और इजी नहीं है लेकिन रिमेंबर द टाइम विल कम सबसे स्कूल में बच्चे कौन सा चीज को सबसे हेट करते कैन यू जस्ट टेल मी सबसे कौन सा चीज को बच्चे सबसे हेट करते Lecture of teachers. नो if the teacher is a good lecture they will like it the students hate the examination को सब ये करते बिल्कुल पसंद नहीं करते देखो कोई चीज को हम पसंद नहीं करते उसको क्यों रखना है उसको हटा दो Sir, देखे ओके आई नो एग्जामिनेशन को हटाना इतना इजी नहीं है बट द टाइम विल कम wait for 10 years within 10 years the examination is not going to be there this is one of the hurdles in the process of thinking मैं सोचूंगा या रट्टा लगाऊंगा तो 98% मार्क लाऊंगा सोचूंगा तो कम हो जाएगा लेकिन सोचूंगा तो वो आगे जाकर काम करेगा so only the thing is next thing is the teacher has to think but sorry to interrupt. please Actually, we are also not interested to take the exam, but parents demand report card. So, in report card, what entry will be doing if you are not taking the exam? yes आप झूठ बोल रहे हो आप सरासर झूठ बोल रहे हो पेरेंट्स कभी वो नहीं चाहते हैं पेरेंट्स चाहते हैं अपना बच्चे ऑलवेज खुश रहे और एग्जामिनेशन है बच्चों आज एग्जाम है बच्चे का मुंह सूख जाएगा पेरेंट्स बोलेंगे बेटा क्या हुआ एग्जाम है so you have imposed the examination on the children don't worry it is not so easy question but the time will come examination there are different forms of examination मैडम मैं आपके साथ हूँ हमारा बच्चे को सबसे ज्यादा कौन सिखाता है पेरेंट्स जो माँ बाप जो बच्चे को सिखाता है कितना बार एग्जाम लेता है कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं लेता है फिर भी बोलता है मेरा बेटा बहुत होशियार है बहुत हुनर है यस द टीचर हैज टू अडॉप्टेड सम मैकेनिज्म नॉट टू टेक द एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन लेना है तो ऐसा एग्जामिनेशन लो जैसे बच्चे खुश हो जाए सो एग्जामिनेशन आप देखो सब रिपोर्ट देखो कमीशंस देखो वो बोलते हैं कि मेक द एग्जामिनेशन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम where the child will enjoy the learning so examination should be a part and parcel of the learning Sir, sorry to interrupt. We used to pass around 25 years in the education system, and when we go for the interview, people are judging us on the basis of one-page resume. So it is the demand of society. That's why we are also doing all these things. resume is not examination मैं आज बंठन का आया हूँ Resume percentage is given. People give. देखो रिज्यूमे आप परसेंटेज देते हो ये मेरा रिज्यूमे आज मैं कोट पहन कर आया क्योंकि आप लोग मुझे देखे रिज्यूमे मतलब आप इतना बढ़िया बनाओ
कि आप जहां भी नौकरी के लिए जाएंगे वो बोलेगा यस कम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं। तो एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द वेरी सेकंड थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ द थिंकिंग। थिंकिंग कैसे होता है जनरली हम लोग को थिंकिंग पता नहीं, हम बच्चे को क्या थिंकिंग बताएंगे। इसलिए हमको पहले टीचर्स को पहले पता होना चाहिए थिंकिंग क्या है, देन वी अलाउ द स्टूडेंट्स टू थिंक। लास्ट में मैं बोलूंगा डोंट कंप्लीट द सिलेबस, ट्राई टू कंप्लीट द चाइल्ड। सिलेबस आधा नहीं कंप्लीट होगा चलेगा, लेकिन बच्चे को अपना उनका जो हुनर है उसको हुनर में आगे बढ़ने दो। देखिए मैडम एक डॉक्टर है लेकिन उनको डॉक्टर में रुचि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बनाकर क्या मतलब है। बच्चों को जो मन करता है उसी को करने दो, लेट देम टू थिंक। सब सोचना एक बार आ जाएगा ना, जंगल में भी छोड़ दो, दे कैन क्रिएट देयर एम्पायर देयर। सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। So coming with कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें आउट ऑफ टर्न there is one question. There we are having time no, limit, in ma'am. this only. There is In one this. time limit, please, ma'am. So next question for Dr. Nilima, ma'am. Ma'am, one day, just let me share one of the story here. Here, it is not permitted. Like kurkure, wafer, it is not permitted. One day, a parent, she was feeding the child with kurkure outside of the campus, and I asked her, "Why you are doing this?" She told me that because it is not allowed inside. That's why I am doing that. Then I suggested her, why you are not serving milk? Then she told me that milk which is there in the market, it is not good for, it is adulterated. So can in this regard, can you suggest us how parent, teacher and school can help children in developing healthy eating habits and outdoor physical activities? Again, a flawed education system, I think, is the basis for everything, because हमारे यहाँ सिर्फ मार्क्स से गिना जाता है सब कुछ, बाकी कुछ भी नहीं है. So whatever you eat, your body is a machine. एक मशीन को ईंधन की जरूरत होती है और सही मशीन में सही ईंधन जाना भी उतना ही जरूरी है. एक डीजल कार में आप पेट्रोल नहीं डाल सकते और पेट्रोल कार में डीजल नहीं डाल सकते और दोनों में आप केरोसिन नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज इट इज ईजी. सो मेहनत करना हर एक फील्ड में बेहद जरूरी है. एज अ मदर और एज अ पेरेंट, I do not want to say mother over here, I want to say parent, because बच्चे की जिम्मेदारी इक्वली दोनों पे उतनी ही है, दोनों ही इक्वल गुनहगार है उसमें. So the responsibility of both the parents is important, and that is why when you talk about food, today a mother is working also and she's taking care of the house also. So she doesn't really have the time to sit and cook. But if the father helps her, this problem of kurkure, murmure, churmure, all will go out of the window. Okay, and healthy eating habits can be inculcated. But if you allow only the mother to do things and the father बाहर जाके काम करके घर पे आ गया, मैं थक गया, पाँव ऊपर करके बैठ गया, तो नहीं होने वाला. Alright, so start contributing to your family, start learning. आपके पास कंप्यूटर्स है, न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन है. गूगल जब आप करते हो तो सिर्फ आपके सिम्टम्स गूगल नहीं करो, आप न्यूट्रिशन के बारे में भी गूगल करो. देखो व्हाट आर द इजी फूड्स दैट यू कैन पॉसिबली मेक इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ना हर एक चीज का बेहद जरूरी है. ट्रांस फैट्स आर बैड, यू नो दे आर बैड, एलिमिनेट देम कंप्लीटली. और एलिमिनेट कैसे करोगे? आप जब मार्केट जाते हो तो बच्चों को साथ में लेके जाओ. टेक देम टू द हेल्दी पार्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंटल स्टोर एंड टेल देम, बच्चे आपको चॉइस दे रहा हूँ, ये फ्रूट में से आपको कौन सा फ्रूट चाहिए आप चूज करो. डोंट गिव देम अ चॉइस कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ जो आपको चाहिए ले लो. नो, चॉइस हैज टू बी हेल्दी. 10 healthy choices and the children will choose that healthy choice because he has no option. He doesn't have the option of kurkure murmure. Don't get it into your house at all. आपको पहले खाना बंद करना बहुत जरूरी है, तो ही आपके बच्चे खाना बंद करेंगे. अगर घर में लाके रखोगे तो बच्चा तो खाने वाला है. Right? So first change your own habits. That is one way. Second way, teach the right way of eating. Every person, one family में सब लोग एक मील इकट्ठा ही खाएंगे और वो मील जब आप खा रहे हो तो हंसी मजाक में वो होना चाहिए. No child should come together with his parents on the meal table and have discussions about, अरे यार तेरा रिपोर्ट कितना खराब था, तेरे टीचर ने तो ऐसा बोल दिया. No, your discussions on the table have to be extremely healthy. टीवी देखते देखते आप नहीं देखो, खाना मत खाओ, ये हम इसलिए कहते हैं बिकॉज आपके सैटाइटी सेंटर को मैसेज नहीं जाता कि पेट भरा हुआ है,
और आप खाते ही जाते हो. So not only what you eat, but how you eat and the proportions that you eat are extremely important. घर में वही चीजें आप लाओ जो आप अपना बच्चा चाहते हो कि वो खाए, और वहां पे रखो जहाँ पे इजिली अवेलेबल हो. अगर घर में लाके आप छुपा के रखोगे, ड्राई फ्रूट बहुत महंगे हैं, हम छुपा के रखेंगे, इट विल नॉट वर्क. कीप इट आउट इन द ओपन, लेट देम ईट, डजंट मैटर. स्मॉल स्नैक्स, अगेन हेल्दी स्नैक्स यू शुड बी प्रोवाइडिंग. कोई ऐसी चैनल्स है अपने पास, यूट्यूब चैनल्स है, प्लीज यूट्यूब चैनल सीरियल देखने के लिए मत यूज करो. इट डजंट रियली हेल्प. सास बहू के झगड़े बिल्कुल काम नहीं करते. अपने घर में हम कुछ गलत सीख के जाते हैं. इंस्टेड गो टू दिस न्यूट्रिशन चैनल्स, आपको सिखाते हैं हेल्दी फूड्स. आप देखो और बनाओ अपने घर में, और वही आपके बैग में दे दो. आई यूज्ड टू गेट अप एट 4:30 in the morning, cook my children's food and give them proper healthy food every time. In the school it was not available, लेकिन घर से भी हम जो भेजते हैं, पेरेंट्स अगेन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मेहनत करनी है. बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी और डिसीजन आपका था, तो उसका परवरिश करने की जिम्मेदारी आपकी है. आप उसके मुकर नहीं सकते. अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, बच्चे पैदा मत करो. बहुत भीड़ है दुनिया में, अडॉप्ट कर लो, दैट इज अ गुड ऑप्शन, बट डू नॉट डू थिंग्स विच यू आर नॉट केपेबल ऑफ. परवरिश नहीं कर सकते, बच्चे पैदा बिल्कुल मत करो. लेकिन अगर करे हैं तो वॉट एवर यू ईट इज मेडिसिन. इफ यू ईट हेल्दी, आपको रोगराई नहीं होगी. हम दोनों की दुकान बंद हो जाएंगे, एंड विल बी वेरी हैप्पी, because we want a healthy population. So what you eat is extremely important. गंदी चीजें घर में लाना नहीं, गंदी चीजें मुंह में डालना नहीं. Only then you will have a तंदुरुस्त body. Thank you. Thank you very much. Coming to Dr. B.N. Biswal, sir. Sir, in most of Indian school, there is a shortage of teacher. Now you are thinking about to develop research and development wing in the school. How is it? Is India ready for this? Well, I'll start with one story. स्टोरी ऐसा है, एक रामायण का कथा चल रहा है. जो कथाकार होता है उसके सामने ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और एक लेडी वहाँ, बुजुर्ग लेडी वहाँ बैठ के रामायण का कथा सुन रही है. 7 डेज चला कथा. एंड में तो कथाकार ने देखा वो लेडी बीच बीच में रोती थी. उनका ऐसे मन कर रहा था जाके उनको पूछूं, मेरा बात इतना आपको समझ में आता है? तो एंड में गया, कथाकार गए और उनको पूछे लेडी को कि आप कितना रो रहे थे, मतलब सब रामायण आपको समझ में आ गया होगा. तो लेडी कहती है, मैं वो रामायण के बारे में कुछ नहीं जानता. मैं 7 डेज यहाँ आया, कथा सुना, बहुत अच्छा लगा. क्या अच्छा लगा ना, आपके जो रामायण का जो ग्रंथ है उसके नीचे जो कपड़े हैं, गेरुआ रंग के कपड़े हैं, वो कपड़े मेरा हस्बैंड अपने कंधे पे ऐसे लटका के घूमते थे, और हस्बैंड नहीं रहे, और कपड़े के साथ मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैं ये आया था. और ये जो मैं रोना आता था, मेरा रामायण का कोई इंटरेस्टिंग नहीं है और मेरे को समझ में नहीं है. मैं कहानी इसके लिए बता रहा हूँ, वो आज हम इसी स्टेज में है. अभी बच्चा स्कूल में आता है, बच्चों को जो चाहिए हम लोग उनको देते नहीं हैं, और पूछते हैं आपको सब समझ में आया? तो बच्चा क्या जवाब देगा? वो लेडी का हालत जैसा था, बच्चा को वैसे कुछ चाहिए. क्या चाहिए बच्चों को? ना मुक्त सोच चाहिए, ओपन थिंकिंग. कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, मैडम जो कह रही थी, और सोचना है, अपने का सोचना है. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीबॉडी. खुद सोचो. सोचता है तो कुछ आगे रास्ता निकलता है. हम ये सोच, बच्चों को सोच कैसे पैदा करें ना, उसके लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढेंगे. मतलब पूरा दुनिया में क्या चलता है उसको ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. उसके लिए थोड़ा रिसर्च चाहिए. बिना रिसर्च में कुछ होता नहीं है. आप यूनेस्को का साइंस रिपोर्ट देखेंगे, उसमें कहा गया है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मैनेजमेंट गुरुज. मैनेजर्स, इंडिया का स्थान कहाँ आता है? कंज्यूमर में आता है, मैनेजर में आता है, मैनेजमेंट करने में आता है, या प्रोड्यूस करता है? वो इंडिया सिर्फ मैनेज करता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. कुछ ऐसे नया चीज करने के लिए सोच चाहिए. वो सोचने के लिए आपको रिसर्च चाहिए. तो इसलिए रिसर्च स्कूल में थोड़े थोड़े, बड़े पैदा में नहीं, छोटे छोटे चीज में रिसर्च होने चाहिए. जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. हम प्रोसेस की बात करें. ये बॉटल को खोलने के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं, आप ऐसे पकड़ो, ऐसे
घुमाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ। अरे बच्चे को देने दो, वो खुद सोचे कैसे लेफ्ट घुमाए या राइट घुमाए। जब तक ये बच्चों को पता नहीं चला, प्रोसेस मालूम नहीं हुआ, प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए, बिना रिसर्च के काम नहीं बनता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट वाला को मालूम नहीं होता है लेफ्ट वाला क्या चाहता है, राइट वाला भी क्या चाहता है। बीच वाला स्टूडेंट अकेला है, उनको कुछ मालूम नहीं है, आइसोलेशन। हम जो कहते हैं, आज डॉक्टर होता है, ये मैडम सॉरी डॉक्टर है, नाजल के अगर मैं जाता हूँ नोज के लिए ईएनटी वाला का होता है। आजकल कहते हैं ईएनटी वाला को फिर स्पेशली आप ईयर के वाला में नहीं, ईयर का समाधान नहीं कर सकता। नोज का वाला सिर्फ नोज का ही जानता है और थ्रोट के वाले में नहीं जानता। ये जो आइसोलेशन आ गया, अभी मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए। इंटीग्रेशन यानी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या है, पूरा बिग पिक्चर क्या है, उसको देखने के लिए आपको रिसर्च चाहिए। बाद में आप और थोड़ा बात करो, और बच्चों को ये डेफिनेटली बताना है कॉन्सेप्ट। आप जो जो बच्चे पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट है, वो कंटेंट नहीं है। सर जो बात करे थे करिकुलम, करिकुलम में कुछ 50-100 लाइन लिखा है, और ये 100 लाइन से कुछ बनने वाला नहीं है। 100 लाइन में पूरा स्ट्रक्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट वो इम्पोर्टेंट है, करिकुलम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको समझाने के लिए टीचर को भी रिसर्च करने की जरूरत है। हम रिसर्च थोड़े थोड़े करेंगे, ऐसे नए नए काम करेंगे, बच्चे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लास में कुछ करने के लिए डेफिनेटली कुछ इच्छा करेंगे, नया कुछ होगा। जो हम लोग सबका एक मकसद है, हम बच्चों को अच्छा इंडिपेंडेंट इंसान बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। इंसान और एनिमल में फर्क क्या है उसको दिखाना है, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के डिफरेंस क्या है वो भी दिखाना है। बाद में एंड में डिवाइन पाथ जो है उसको जाना है। ये हमारा स्कूल का लक्ष्य है, इसके माध्यम सिर्फ रिसर्च है। धन्यवाद। Thank you, Dr. B.N. Biswal. Now next question is to Prabhu Parsakha Das. अभी सर हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देयर आर सो मेनी लॉफॉल्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सर आप एज ए स्पिरिचुअल गुरु, इन गीता इट इज सेड दैट मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस बिकम इररिलेवेंट इन प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कैन यू एलाबोरेट सर? Hare Krishna. So generally, what is material intelligence and what is spiritual intelligence, we should understand first. The intelligence is coming from the material beings, like the human beings, that is called materialistic intelligence. And the intelligence coming from the supreme being, God, that is called spiritual intelligence. By this materialistic intelligence, we can create this bulb. We see this light. It is the creation of material intelligence. But we see the sun every day. Surya हम रोज देखते हैं. That is created by the supremely spiritual intelligence. In the presence of that supremely spiritual intelligence, that sun, this bulb has no value. The bulb is irrelevant. So in the presence of sun, there cannot be darkness. The origin of generally darkness is absent of sun. Similarly, the ignorant and bad qualities within our heart is due to the absence of God consciousness or spirituality. By the academic education, we can become an engineer, we can become a doctor, we can become a IAS officer, we can become a businessman. But by spiritual science, we can become a good human being. By the academic education, we can get car. But by spiritual education, we get sanskar. So we need car, we need sanskar. We need computer, we need character. We need money, we need harmony. We need career, we need care. We need spaceship, we need sublime relationship. We need entertainment, we need enlightenment. But the enlightenment, the care, the sublime relationship, the harmony, the sanskar, the character comes from when you practice spirituality. Just as there is gold inside the gold mine, you require purification. Similarly, we need required purification of our consciousness, lust, anger, greed, pride, illusion. And for that purification,
we need spirituality. Here, spirituality is more important than material education. Here, material intelligence becomes irrelevant with the spiritual intelligence. Hare Krishna. Thank you, sir. Now, next question is to Dr. Rajendra Chauhan, sir. सर अभी देखा गया है कि हम एक एज के बाद सोशल वर्क करते हैं. सो द क्वेश्चन फॉर यू दैट हाउ पेरेंट्स एंड टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप द हैबिट ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम द स्कूल डेज. डॉक्टर चौहान. Okay. Thank you. Should I get up or should I sit? हरी बोल. People, यहाँ पेरेंट्स लोग को नहीं मालूम, लेकिन जब प्रभु जी जब यहाँ बच्चे बैठे रहते हैं या जब मैं बच्चों के सामने रहता हूँ तो मैं एक बार जोर से हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल. हरी बोल. हरि बोल. So they say 3 times. Anyway, तो let us come to our main point के सर क्वेश्चन क्या था? सोशल सर्विस. अच्छा, आज स्कूल क्या हो गया है? स्कूल बन गया है एक एग्जाम ओरिएंटेड मशीन या ऑर्गेनाइजेशन, जहां उसका रीजन क्या है? एग्जाम क्यों लेना है? कि वो जो भी बच्चा आता है वो जाके बहुत आगे जाके पैसा कमाए. पैसा कमाए कि कुछ प्रोफेशन डिग्री मिले. प्रोफेशन डिग्री मिले इसलिए नहीं है खाली, क्योंकि ये जो बच्चा है वो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा या कोई XYZ बड़ा कोई पर्सन बनेगा और फिर आखिर में क्या करेगा? बहुत पैसा कमाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा. मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बना. अल्टीमेटली इतना बड़ा आदमी बना, इतना पढ़ा, जितना ज़्यादा मार्क मिला, जितना ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा बड़ा हो गया, आगे और ज़्यादा कमाया. तो दैट इज़ देयर एम. उसको क्या मिला? क्या यही है जिंदगी? यही है क्या इंसानियत? ये जो जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद अगर देखना है तो खाली 2 शब्द एक सुन लो आप मेरी. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. ये जो है कल्चर वो भी हमें यहाँ चाहिए. तो आप जो दे रहे हैं वो तो एसेंशियल है. खाए बगैर तो कौन जी सकता है क्या? अच्छा स्टैंडर्ड रहे बगैर कोई रह सकता है? तो इट इज डिफिकल्ट. लेकिन कल्चर, संस्कार ये मिलना बहुत ही जरूरी है. और कहाँ से मिल सकता है बच्चे को? बच्चे के पास खाली 2 ही प्रॉपर्टी है, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स. तो ये 2 प्रॉपर्टी जो उनकी है उससे वो ज्यादा आगे प्रॉपर्टी बनाने वाला है. तो ये प्रॉपर्टी कैसी है उसके ऊपर आगे का निर्भर होता है. और आगे का निर्भर करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो अगर अच्छी तरह से वहाँ प्रोड्यूस हुई तो आगे होगा. तो क्या करना चाहिए पेरेंट लोग ने? कि भाई एक समझो, एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कोई बुरा मत मान लेना. समझो एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है जिसके अंदर कोई सब लोग जाके ब्लड एलिजिबल लोग दे सकते हैं जो 18 से 60 साल के बीच में है, जिसका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, जिसको कोई बीमारी नहीं, वो ब्लड डोनेट कर सकता है. पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं. वो स्कूल में क्यों लगाने का? लेकिन क्या बच्चों का खून लोगे? इसके लिए लगाएंगे? नहीं, इसके लिए नहीं कि कुछ पेरेंट्स लोग देंगे, कुछ टीचर्स लोग देंगे, और जब वो ब्लड डोनेट करते रहेंगे तभी वो बच्चे आके देखेंगे कि भाई हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जो है कुछ काम कर रहे हैं. तो ये क्या काम कर रहे हैं? तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम उनमें इम्बाइब होएगा. घर में जब हम परिवार बन के मिल के बैठते हैं और कोई काम वाली आई है और वो बीमार है, फिर भी वो काम करते जा रही है या उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और अपन टाइम पास कर रहे हैं, तो ये जो है वो बच्चे लोग देखते हैं. उसकी जगह पे अगर कोई पेरेंट्स है, उसने बोला अरे आज तेरी बीमार है, ले पैसा ले या जा डॉक्टर के पास बता क्या, व्हेन शी हैज सिंपैथी, शी हैज दैट. तो ये जो है ये बच्चे लोग में जाता है. अगर तुम ट्रेन में जाओगे, ट्रेन में बैठोगे और एक कोई एक लेडीज आ गई है या कोई बड़े उम्र के आ गए और आप नहीं उठोगे, आप बैठे रहोगे, आपका बच्चा देखेगा तो कल को वो भी नहीं उठेगा. इसलिए संस्कार देने के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है, अच्छा आपके बच्चों में संस्कार जावे, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू. तो बच्चे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, दे आर रॉ. आप लोग चेंज हो गए, पेरेंट्स लोग, टीचर्स लोग, अगर अपना माइंड प्रोसेस, अपन थॉट प्रोसेस चेंज किया कि भाई ऐसे कैसे क्या कुछ डाल सकते हैं उसमें कि विच विल हेल्प देम. जैसे डाइट का, न्यूट्रिशन का बताया, जैसे एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब है. स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट बट ह्यूमनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और हम अपने बच्चों में इंसानियत डालने के लिए हमारे में इंसानियत जगानी बहुत ज़रूरी है.
I think that is how we should go. Thank you, sir. Thank you, Dr. Chauhan sir. Now, because of time constraint, now we are closing our discussion here. There will be any question from parent side. We'll be taking one question from parents. Hello, good Hello. evening, respected chief guest and my dear parents. It was a very nice session. We got to hear about examination, schooling, diet, nutrition, spirituality. Thank you so much. Ma'am, sir, my question is like in all this situation, as the principal of the school, what do you expect from the parents? Okay, ma'am, just only one, in one word, I will answer this question. Parents, you send your children like a star, and we promise that we'll make them superstar. This is the right answer. Okay, ma'am? Thank you, sir. So, thank you all the panelists. Now, here, there is the end of this program. Thank you very much.